आपका पास हमारे यूट्यूब चैनल पे डी यू हब। तो आज हम पढ़ेंगे आपका वैल्यू एजुकेशन कोर्स गांधी एंड एजुकेशन, जो आपका रहने वाला है वैक का टॉपिक। इस पर हम गांधी एजुकेशन को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे वन शॉट में, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। गांधी एंड फिलोसफी इन एजुकेशन यूनिट 1 रहने वाला है। गांधी एक्सपेरिमेंट इन एजुकेशन यूनिट 2 रहने वाला है। यूनिट नंबर 3 आप देखोगे गांधी एजुकेशनल थ्रू स्किल्स एंड वोकेशनल एजुकेशन रहने वाला है। यूनिट नंबर रहने वाला गांधी एंड फिलोसफी ऑन एजुकेशन। महात्मा गांधी जो थे one of the most influential figure in Gandhian history, has significant impact on education and its role in the society. Gandhi believed that education should go beyond the academics knowledge to pay attention and vital roles in developing individual character। मैं आपको इंग्लिश में डिस्कशन करूंगा, क्योंकि आप जब पेपर में लिखोगे ना, तो आप इसको कान में हेडफोन लगा के मेट्रो में जाते समय भी सुन सकते हो। जिसके थ्रू क्या होगा, आपको माइंड में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड होंगे वो रिवॉल्व होते रहेंगे। तो महात्मा गांधी, one of the most influential figure in Indian history, have a significant impact on education and its role in society. Gandhi believed that education should go beyond the academic knowledge and play a vital role in developing individual character and a moral value. He emphasized the importance of the holistic education, which encompassed the intellectual, physical, and spiritual growth. Gandhi philosophy of education was rooted broader principles of non-violence, truth, and the social justice. He advocated for the education that would go and empower the individual to become an active participation in their community and the work towards the betterment of a society। इंट्रोडक्शन टू द गांधी फिलोसफी। भैया गांधी जी के फिलोसफी का इंट्रोडक्शन करते हैं। महात्मा गांधी वॉज एन प्रोमिनेंट लीडर एंड अ फिलोसफर हु प्लेड अ क्रूशियल रोल इन अ फ्रीडम स्ट्रगल। ही डेवलप अ यूनिक फिलोसफी बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल लाइक ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड सोशल जस्टिस। गांधी फिलोसफी एम एट ट्रांसफॉर्मिंग द इंडिविजुअल सोसाइटी टू द मोरल एंड द एथिकल वैल्यू। गांधी व्यू ऑन एजुकेशन। भैया गांधी जी एजुकेशन के बारे में क्या सोचते थे? गांधी जी का कहना था, सब की शिक्षा निर्धारित करना उसके एज के हिसाब से अत्यंत आवश्यक है। मतलब इसका क्या होता है, गांधी बिलीव एजुकेशन शुड फोकस ऑन अ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल encompassing their intellectual and the physical spiritual aspects. He emphasized the importance on characters building, moral values, practical skills on education. According to Gandhi, the education should foster a sense of social responsibility and contribute to the betterment of the society. Holistic education क्या होती है? गांधी holistic education advocated for the, गांधी जी ने क्या किया था, एडवोकेट किया था, बताया था holistic education के लिए that nurture the mind, body and spirit of individual. He believed that education should not only focus on the intellectual development but also on the physical fitness and spiritual growth. Gandhi emphasized the need to be balanced for the education that address all the dimensions of the human existence. Character development. Gandhi viewed education as one of the most important for the character and moral value. He believed that the education should to reach individual virtues like truth, honesty, and humanity. Gandhi considered the character development as the foundation of the leading an ethical and a purposeful life. Value-based education. Gandhi emphasized the importance of the value-based education that insisted the people like truth and the non-violence. He believed that the education should promote the ethical behavior of the social harmony and the respect for the diversity. Gandhi considered the values are essential for creating the just life and intellectual society। प्रैक्टिकल लर्निंग। भैया गांधी जी क्या कहते हैं, भैया प्रैक्टिकल लर्निंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लट्टू तोते बन के बैठे हुए हैं। प्रैक्टिकल लर्निंग होनी चाहिए, और जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो भी इसी के ऊपर बेस है। ही बिलीव दैट एजुकेशन शुड कनेक्टेड विद द रियल लाइफ सो दैट द स्टूडेंट के दिमाग का विकास हो सके। एजुकेशन फॉर द सोशल चेंज। भैया एजुकेशन होगा तभी तो हमारे समाज का विकास होगा, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लोगों की सोच में परिवर्तन आएगी। ठीक है, फिर आता है जी सेल्फ रिलायंस एंड इंडिपेंडेंस। एजुकेशन के थ्रू गांधी जी का मानना था कि लोग क्या हो, सेल्फ इंडिपेंडेंस बने, सेल्फ रिलायंस बने, खुद के दम पे खड़े हो, खुद के पैरों पे खड़े हो, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें। ठीक है, गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर में, और गांधी जी मरे कब थे? 30 जनवरी 1948 में गांधी जी इंडिया मतलब वो मर गए थे। ठीक है, और 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात में गांधी जी बॉर्न हुए थे। ठीक है, ही एनकरेज द इंडिविजुअल टू थिंक क्रिटिकली एंड मेक द ओन डिसीजंस एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर लर्निंग। गांधी बिलीव्ड दैट एजुकेशन शुड एम्पावर द इंडिविजुअल टू बिकम अ जॉय and are self-sufficient and contribute positively towards the society। गांधी फिलोसफी और एजुकेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट समरी बताई गई है यहाँ पे। ठीक है,
विच कम्स यू फॉर यूनिट 1 आपका समाप्त हुआ। देखिए 4 मिनट में आप हमने यूनिट 1 समाप्त कर दिया, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप अपने पेपर में लिख के आ सकते हैं। यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इंट्रोडक्शन टू गांधी एक्सपेरिमेंट ऑन एजुकेशन। भैया गांधी जी ने को बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे इंट्रोडक्शन ऑफ द गांधी जी के लिए। पहला उनको क्या था, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द टॉय फार्म एंड फोनिक्स सेटलमेंट। ये उन्होंने 1910 में गांधी स्टैब्लिश अ टॉय फार्म इन साउथ अफ्रीका एज एन एक्सपेरिमेंटल कम्युनिटी वेयर द एजुकेशन प्लेड अ सेंट्रल रोल। भैया एजुकेशन ने बहुत रोल किया। टॉय फार्म एम एट प्रोवाइडिंग द एजुकेशन दैट फोकस ऑन द मोरल डेवलपमेंट एंड द प्रैक्टिकल स्किल्स एंड सेल्फ रिलायंस। 1904 में गांधी स्टैब्लिश द फोनिक सेटलमेंट इन साउथ अफ्रीका विच सर्व एज अ सेंटर ऑफ द सेल्फ सफिशिएंट एंड लिविंग। नई तालीम का भी गांधी जी ने किया था। नई तालीम बेसिक एजुकेशन फिलोसफी थी। नई तालीम ऑल्सो नोन एज द बेसिक एजुकेशन was educational philosophy developed by the Gandhi. It aimed at providing the education that integrated intellectual, physical, vocational aspects and emphasizing the connected with the clearing and practical knowledge. नई तालीम का गांधी जी ने वहाँ पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। फिर आता है आपका वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन भी एक क्या है, स्कीम है जो गांधी जी ने लाई थी 1937 में। जो आपको एजुकेशन में एक्सपेरिमेंट में उन्होंने यूज़ की थी। यानी पर मैनुअल लेबर प्रोडक्टिव एक्टिविटी। गांधी कहते थे कि जो भी हम कर रहे हैं उसके प्रोडक्टिव एक्टिविटी होनी चाहिए। क्रिटिकल ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन। गांधी जी ने एजुकेशन को लॉन्च करने के उन्होंने कहा ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन, क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह उन्होंने करी थी। गांधी की डिज़ायर ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम एट फोकस ऑन द रोट मेमोराइजेशन, मतलब कि रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए, उनको हमें प्रैक्टिकल लाइफ की तरह उनको समझाना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ द कम्युनिटी सर्विस होना चाहिए। सोशल डेवलपमेंट इम्पैक्ट ऑन गांधी के एक्सपेरिमेंट का इम्पैक्ट किया, इंस्पायर किया लोगों को कि वो एजुकेट हो सके, सेल्फ रिलायंट बन सके। ठीक है, PYQ इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कौन सा है, देखो गांधी हैज अ स्ट्रॉन्ग व्यू ऑन द मीडियम ऑफ एजुकेशन, टेक्स्ट बुक एंड रोल ऑफ टीचर। ही बिलीव दैट द प्रमोशन एंड यूटिलाइजिंग utilizing of the Indian languages and education were the crucial in preserving and cultural identity. Use of the Indian languages is the medium of the instruction. Gandhi advocated for using the Indian languages as the primary medium of instruction in schools and education institution. He believed that the learning of the one mother tongue or the regional languages promoted the better understanding and communication. Gandhi argued that using the Indian languages should ensure the accessibility to the education for the majority of the population who weren't proficient in the English. Development of a textbook in Indian languages. Gandhi stressed the importance of developing a textbook in Indian languages that reflected the culture, historical perspective, etc. He believed the textbook should promote the sense of pride and Indian heritage. Gandhi emphasized the need for the contextual and the relevant educational material that would experience a role of टीचर। भैया टीचर क्या है, गांधी के टीचर को जो है स्टूडेंट की महत्व को समझना चाहिए, स्टूडेंट के फीलिंग्स को समझना चाहिए और उनको उस तरीके से पढ़ाना चाहिए जिसके थ्रू क्या उसके बच्चों को समझ में आ सके। इंक्लूसिव एंड वर्नाकुलर एजुकेशन क्या होता है, गांधी बिलीव इन प्रोवाइडिंग द एजुकेशन क्रिएटेड नीड फॉर सिलेक्शन ऑफ सोसाइटी। ही एडवोकेटेड वर्नाकुलर एजुकेशन दैट मेड एजुकेशन accessible and relevant to the diverse linguistic culture and a background. Gandhi saw the vernacular education as a means to empower the uplift the individual who can traditionally exclude the disadvantages. Languages as a unifying force। लैंग्वेज का यूनिफाइंग फोर्स होता है, व्यू करता है लैंग्वेज उनको समझ में आ सके। जब तक मीडियम ऑफ जो जब तक आप मीडियम जो होगा आपके लैंग्वेज बोलने का वो समझ में ही ना आए स्टूडेंट को, तो टीचर का क्या मतलब रह जाएगा पढ़ाने के लिए। अब एलिमेंट्री एजुकेशन का भैया गांधी एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ बेसिक एजुकेशन जैसे फंडामेंटल लर्निंग, वह सबका अधिकार है कि उनको बेसिक एजुकेशन होना चाहिए। ही बिलीव द एलिमेंट्री एजुकेशन शुड फोकस ऑन इम्पार्टिंग द इंडिविजुअल के अंदर नॉलेज, प्रैक्टिकल स्किल्स डालना। एजुकेशन फॉर ऑल ही उनका महत्व था गांधी जी का। में आता है आपका इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या है कि जो आप जो बड़े लोगों की एजुकेशन होती है, यानी कि जो आप कॉलेज के जो बच्चे पढ़ते हैं और जो बेसिक एजुकेशन है उसका इंटीग्रेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़ों के बाद कुछ और पढ़ाया जा रहा है और जो बचपन में लोगों को उनको और पढ़ाया जा रहा है। अडल्ट एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, लाइफ लाइफ एजुकेशन चलनी चाहिए। एजुकेशन की कोई उम्र नहीं होती है, जब चाहो हमेशा सीखने की लोगों के अंदर भावना होनी चाहिए। प्रैक्टिकल एंड एप्लीकेबल नॉलेज होना चाहिए। एजुकेशन फॉर द सोशल चेंज, सोशल की चेंजेस के लिए आपको एजुकेशन करना चाहिए। परसुएट फॉर ट्रूथ, एथिकल एंड मोरल एजुकेशन। इंटीग्रेशन ऑफ थ्योरी इनटू द प्रैक्टिस, एजुकेशन फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ आपके पॉइंट्स रहने वाले हैं। एम्फोसिस ऑन द इंडियन कल्चर। फिर आता है आपका गांधी इज एजुकेशनल थॉट्स ऑन स्किल्स एंड वोकेशनल। भाई देखो आपको यूनिट नंबर 3 रहने वाला है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। 20 मिनट से मैंने आपका प्रॉमिस किया था कि आई विल कंप्लीट योर बैक पेपर। ऐसा काम है कि वन शॉट रिवीजन हम कराते हैं अपने चैनल पे, 20-20 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करके देते हैं हर एक सब्जेक्ट में।
rural development through the skills and local need of education, understanding local needs, promoting the local skills and craft, agriculture and rural tradition, entrepreneurial and self-employment, community participation, ownership, sustaining and environmental stewards, empowering students। एनईपी में देखो, एनईपी में आया गया था यूनिट नंबर 3 में। एनईपी कैसे रिलेटेड है हमारे गांधी जी के फिलोसफी के हिसाब से? इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, स्किल बेस्ड एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, कॉन्टैक्ट लोकल कॉन्टेक्स्ट, मल्टीपल पाथवेज एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग जैसी चीज़ें हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। और गांधी जी के फिलोसफी का मानना था, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन किसके ऊपर है? गांधी जी के फिलोसफी के ऊपर ही हमारी क्या है? बेस है। ठीक है, तो गांधी आइडियाज ऑन सेल्फ रिलायंस, सर्वालंबी शिक्षा गांधी जी कहते थे। थ्रू द एजुकेशन फिलोसफी, वोकेशनल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योर्स एजुकेशन एम्फोसाइजेस ऑन प्रैक्टिकल लर्निंग। भी प्रैक्टिकल लर्निंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। फोकस ऑन अ क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिजिटल एंड कल्चरल लिटरेसी, एजुकेशन फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दी एंड होता है आपका वैक का पेपर। देखिए कंप्लीट 10 मिनट्स के अंदर हमने आपको कंप्लीट वन शॉट रिवीजन करा दिया, जो आप अपने एग्जामिनेशन में जाने से पहले क्विक रिकैप देख सकते हैं, जो आपको कंप्लीटली पूरा टॉपिक कवर किया गया है।